Hello my loves, I'm Malika. Welcome or welcome back to my channel. If you are new here, then do not forget to subscribe to my channel as well as hit on the notification bell icon. Now. So you already know by the title of this video that I'm going to review the 15% Derma Co chemical exfoliator, and everybody who has been following me or has been subscribed to my channel since a while already knows that I was trying out this product. I have so many comments in the shorts which I have uploaded some time back, in fact 3 months back. So many of you guys wanted to know the result, and I was gatekeeping it because I wanted to actually review it on myself, wait, give it time, and then give you all final and the honest review of this 15% HA plus BHA chemical peeling solution. Because since this is quite a high dosage of product, I know it is not like the 30% ordinary peeling solution, but again, since it's a peeling solution, it has quite a high percentage in it. And like a beginner, okay, like I was a beginner using this product, and I wanted to give it enough time. I wanted to give this product enough time to act up on my skin. Now I'm shooting this video without any kind of makeup so that you can see my skin, like you can see my skin clearly. I just have a lip gloss on, the Dot & Key lip gloss on. Other than that, and this video is not a sponsored one, it will have my complete honest feedback on this product. वीडियो के शुरुआत में मैं अपने स्किन को बहुत क्लोजली दिखाना चाहती हूँ so that you can see my skin from really up close and personal, like very close. You can also, like, if you are new watching this video and you have no idea why I'm showing my skin like in such a zoomed up way, then please go and watch the shorts. It's just a 12 to 15 second short. You can go and watch that if you are new here and you have no idea what's going on. मेरा बहुत ज़्यादा breakouts आ रहे थे, like बहुत ही ज़्यादा breakout और acne prone skin था, और इसके लिए मेरा एक बहुत ही गंदा habit है कि मैं अपने pimples को हाथ लगाती हूँ, जो किसी को नहीं होना चाहिए ये habit, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दाग हो जाते हैं मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा। और ये जो पिंपल मार्क्स होते हैं ना, ये आसानी से नहीं जाते, ट्रस्ट मी। इन्हें जाने में 6 महीना 1 साल भी लग सकता है, एंड देन यू कैन गेट क्वाइट इम्पेशेंट कि ये पिंपल मार्क्स जा क्यों नहीं रहे, एंड दैट इज़ व्हेन पीलिंग सोल्यूशन कम्स टू हेल्प यू। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर के साथ, अगर आप 22 इयर्स या 25 इयर्स के ऊपर हो तभी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो। 23 के ऊपर हो और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और मार्क्स है मुंह में, एक्ने मार्क्स है, तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। बिफोर दैट या बिफोर उस एज यू प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ it's an acid basically, and if you're using that, your skin before that age is too sensitive to take in that product. मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी ये प्रोडक्ट को यूज़ टू करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, लाइक एटलीस्ट 1 मंथ। और ये जो पिंपल मार्क्स होते हैं ना, ये आसानी से नहीं जाते, ट्रस्ट मी। इन्हें जाने में 6 महीना 1 साल भी लग सकता है, एंड देन यू कैन गेट क्वाइट इम्पेशेंट कि ये पिंपल मार्क्स जा क्यों नहीं रहे, एंड दैट इज़ व्हेन पीलिंग सोल्यूशन कम्स टू हेल्प यू। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर के साथ, अगर आप 22 इयर्स या 25 इयर्स के ऊपर हो तभी आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो। 23 के ऊपर हो और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं और मार्क्स है मुंह में, एक्ने मार्क्स है, तभी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। बिफोर दैट या बिफोर उस एज यू प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ it's an acid basically, and if you're using that, your skin before that age is too sensitive to take in that product. मेरे लिए भी, मतलब मुझे भी ये प्रोडक्ट को यूज़ टू करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, लाइक एटलीस्ट 1 मंथ मुझे लगा है इस प्रोडक्ट को यूज़। मैं थोड़ा सा मतलब स्केप्टिकल हूँ, मतलब स्केप्टिकल थी कि इसका मैं रिव्यू दूँ, ये प्रोडक्ट कैसे होगा नहीं होगा। मैं प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी
कि ये एसिड है, केमिकल एक्सफोलिएशन है होगा स्किन में। तो ये बेसिकली जो स्किन एक्सफोलिएशन या केमिकल एक्सफोलिएशन होता है ना, ये बस ऊपर वाला लेयर को एक्सफोलिएट नहीं करते, ये हमारा जो डीपर लेयर्स ऑफ स्किन है उधर जाके मतलब एकदम डीप लेयर से ये एक्सफोलिएशन होता है आपके स्किन में। तो जो गंक है प्रोडक्ट मतलब स्किन के जो भी गंक है और जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ मेलानिन है वो एवरीथिंग गेट्स एक्सफोलिएटेड, ओके। एंड आई वाज वेरी skeptical before using this product because yeah, I am just 25 right now, so again, unless and until you have a lot of skin issues, you are not supposed to use a skin exfoliator. So this product can be quite harsh with your skin, quite harsh. तो that is why of course, और मतलब पैच टेस्ट अच्छे से करके then only you use in your face, okay. Now you can patch test on this area or on this area, okay. I usually do like underarms is quite sensitive, don't go for underarms guys, you might up like injuring or burning your underarm, so please do not do that. Either this area or this area you can go for a small patch test, ये आप कर सकते हो easily घर पे अगर before using it on your face। और इसका ना patch test बहुत ही ज़रूरी है, मतलब without patch test please do not put it on your face, please please please। I'm quickly going to show you the consistency of this product. It's basically a red blood-like blood-like thing for your skin and it's very light, water-like। So जो मतलब इसको लगाने के बाद कोई हैवी या ग्रीजी आपको फील नहीं होगा। नाउ मैं क्विकली आपको ये बोल देती हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। यू फर्स्ट वॉश योर फेस विद अ जेंटल क्लेंजर, एनी फेस वॉश whatever you are using please use that, आपके स्किन के ऊपर ज़्यादा हार्श या कुछ फील ना हो। एंड फिर फेस को आप पैड ड्राई या एयर ड्राई कुछ भी टाल ड्राई कर लो, पैड करके ज़्यादा प्रेशर ना देके। एंड वंस योर फेस इज कम्प्लीटली ड्राई, जब आपके स्किन पूरे तरीके से ड्राई हो जाएगा, उसमें वाटर ना रहे, फेस डैम्प ना रहे, तो आपकी फेस बिल्कुल ड्राई रहे, डैम्प ना रहे, एकदम ड्राई रहे आफ्टर वॉशिंग योर फेस। और जब आपकी फेस बिल्कुल ड्राई हो तो आप बस इसको लगा लो, ये डर्मा को 15% पीलिंग सोल्यूशन, इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली वन। तो आप इसको लगा लो इवनली, पूरा फेस और नेक में लगा लो इवनली, ओके। इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने फिंगर्स से। मेक श्योर योर हैंड्स, योर फिंगर्स आर सैनिटाइज्ड एंड वेल क्लीन्ड, लाइक वॉश इट विथ अ गुड हैंड वॉश, जेंटल गुड हैंड वॉश, so that your fingers, your hands, everything is very very clean। और इसको लगाने के बाद आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर इसको एक ल्यूक वार्म वाटर की मदद से इसको वॉश आउट कर लो, धो लो। और प्लीज़ डू नॉट एक्सीड मोर देन 5 to 10 मिनट्स। मैं बोलूँगी कि आप इसको 15-20 मिनट्स बिल्कुल ही ना रखें, बस 5 to 10 मिनट्स के मतलब साथ ही आप मतलब बेसिन तक पहुंच जाओ 8 मिनट्स में ही, और इसको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लो। और फर्स्ट टाइम जब आप लगाते हो, फर्स्ट 2 टाइम्स, तब प्लीज़ डू नॉट एक्सीड 5 मिनट्स। फर्स्ट 2 टाइम्स 5 मिनट्स तक ही हमें उसको अपने फेस पे रखना है। और फिर जब हमारे फेस उसको यूज टू करेंगे, स्किन यूज टू करेंगे, तब आप 10 मिनट्स तक रख सकते हो। बट बिफोर दैट प्लीज स्टिक टू 5 मिनट्स फॉर योर स्किन टू गेट adjusted or accustomed for this particular product, because this is quite a harsh product for your skin. Again, we need exfoliation, and I'm not saying that exfoliation is not good. It's very good for your skin. It deeply cleanses and purifies your skin. सो प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त ये सारी चीज़ आप बहुत ध्यान दो, क्योंकि मैंने जब भी इस प्रोडक्ट को 1 या 2 बार शायद मैंने गलती से इसको 15 मिनट्स रख दिया था, और मेरे मुंह जो था मतलब पूरा 1 वीक इतना ड्राई था कि मेरे स्किन के ये सारे एरियाज तो पूरा तरीके से मतलब पील होने लगा, और स्किन बहुत ही ड्राई और क्रैकी फील हो रहा था। जबकि मेरा स्किन तो ऑयली है, लेकिन इतना ड्राई और क्रैकी हो गया था कि बहुत ज़्यादा बोरोलिन या मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे। और आप जब ना इसको लगाते हो तो ये सारे एरियाज, ये पार्ट और अपने अंडर आइज में और इधर बिल्कुल भी ना लगाओ इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये सारे पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं हमारे फेस के। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में लगाओगे तो ये बहुत ड्राई और केकी, नॉट केकी, लाइक वेरी ड्राई एंड क्रैकी
फील हो सकता है, बहुत ड्राई और क्रैकी। सो अदरवाइज आई कैन से दिस प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस। मैं कुछ बेनिफिट्स इधर लिख दूंगी अपने स्क्रीन पे, सो दैट यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। एंड राइट आफ्टर वॉशिंग इट ऑफ विथ अ lukewarm water, what you do is you can apply some rose water on your face and also apply a thick layer of moisturizer. एंड अ वेरी बिग डिस्क्लेमर अगेन, इस प्रोडक्ट को बस रात में ही लगाए, दिन में ना लगाए, क्योंकि दिस प्रोडक्ट अगेन इट कैन अब्जॉर्ब द यूवी रेज और मतलब अच्छे करने की जगह ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को मतलब स्किन में और ज़्यादा बुरा चीज़ें कर सकती है। सो प्लीज़ डू नॉट अप्लाई इन द मॉर्निंग और डे टाइम व्हेन द सन इज ऑन। तो रात में ही ये प्रोडक्ट को आप लगाओ अपने स्किन में। मैं अभी नहीं लगाऊंगी बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द मॉर्निंग एंड आई डोंट वॉन्ट माई स्किन टू रिएक्ट टू एनीथिंग। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगले दिन या फिर लाइक अ वीक आफ्टर, इनफैक्ट एवरी डे, जब आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करते हो तो SPF 50 लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग SPF 50, ट्रस्ट मी, यू विल डू मोर हार्म टू योर स्किन देन डूइंग एनी गुड। अगर SPF नहीं लगा रहे हो तो ये प्रोडक्ट मतलब फेंक दो उसको, लेकिन लगाओ मत, बिकॉज इट विल not do any good to your skin. If you are applying this product and not using a SPF, I can give you a list of SPFs, good SPFs which are non-greasy, non-sticky, affordable, works really good. I can give you a list of them, and if you want me to review any of them, please do not forget to comment down and I would be glad to review the SPFs for you. I'll write down some SPFs for you guys with SPF 50. You have the Dot & Key, you have the Wish Care, all are. I'm going to write the name of all the SPFs with their packaging so that it becomes easier for you guys to know like some good SPFs. If you want any review, I'll be glad to share. Again, I'm mentioning that. So yeah, that's it for this video, and if your skin gets accustomed to this, then you can use any other kind of chemical peeling solution. Now this one was not advised to me by my derma, but yet again, if you have a very sensitive skin, then please do your own research before using this product. Again, this is not for like what should I say, this is not for light-hearted ones. Again, you have to be very careful, you know, extra careful while you are using this product. This is the price of this product is $499 and it's easily available on Amazon, Nykaa, Flipkart, anywhere. तो ये सब जगह इजीली अवेलेबल है। 499 तो इसका MRP है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ये नायका और या तो अमेज़ॉन में भी इजीली मिल सकता है। तो इससे आप यूज़ करो, बट बहुत ही ध्यान से यूज़ करो। अगेन आई वुड लाइक टू से, और मैं अपने स्किन तो आपको दिखाई रही हूँ कि बहुत हेल्प किया है मुझे पिंपल और एक्ने से ये प्रोडक्ट। मैं पहले एजिडर्म भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं क्लिंडोमाइसिन भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हर रोज़ यूज़ करना होगा, रेगुलर बेसिस में यूज़ करना होगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट यू कैन यूज़ 1 to 2 times, no sorry, I would say once in a week you use and you're good to go। और अगर आपके एक्ने या पिंपल कम हो गए तो आप मतलब 2 हफ्ते में एक बार ही लगाओ, उससे ज़्यादा ना लगाओ। इससे मतलब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है हमें, जितना कम हो सके लगाना है, या मतलब 2 हफ्ते में एक ही बार आप लगाओ इसको। और वन मोर थिंग, मैं ज़्यादा साइंस नहीं लाना चाहती थी इस वीडियो में, ताकि ये सबके लिए, मेरे लिए भी इजी हो ये वीडियो बनाने और लाइक आप लोग को मतलब रिव्यू करने में इस प्रोडक्ट को। सो बेसिकली द थिंग इज दैट दिस प्रोडक्ट कंटेन्स 5% glycolic acid, 5% lactic acid, 5% mandelic acid and 1% salicylic acid. Now all these acids are really good in exfoliating the deeper layers of your skin as well as lightening or brightening your skin. I do not support skin lightening, but yes, this product helps in skin brightening, not lightening. I did not see any lightening results with this product. People might say that lactic acid is a good agent for lightening, skin lightening or brightening. आप जो मतलब मन हो कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये प्रोडक्ट मुझे एक्ने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है।
So guys, that's it for this video. I would not like extend and exaggerate this review for you guys. So if you all like this video, then do not forget to give a thumbs up, comment down below, and I would be like freaking so happy with that. I love you all so much. Hope to see you all super soon in my next video. Bye bye, take care.